गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नर्सिंग लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं ESIC का 2019 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन पेपर। Response to avoid in therapeutic communication are as follows: accept. First, arguing and judgmental responses. Second, close-ended questions. Third, advice giving. And fourth, reflecting and clarifying. And correct option is reflecting and clarifying. Next question: which of the following is not a typical difference factor between benign and malignant tumor? तो malignant and benign tumor में कौन सा टिपिकल फैक्टर नहीं है? तो साइज ऑफ द ट्यूमर, सेकेंड ग्रोथ रेट, थर्ड इनकैप्सुलेशन एंड फोर्थ सेल डिफरेंशिएशन. एंड करेक्ट ऑप्शन इज साइज ऑफ ट्यूमर is not the typical difference factor between the benign and the malignant tumors. The next question: Montauk's test purified protein derivative is significantly positive when erythema measures. Montauk's टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगी, लेकिन कब पॉजिटिव आएगी? तो फर्स्ट ऑप्शन 15 mm और ग्रेटर, सेकेंड 3.5 mm to 9.9 mm, थर्ड ऑप्शन 5 mm to 10 mm एंड फोर्थ ऑप्शन 10 mm to 14.9 mm. एंड करेक्ट ऑप्शन इज 15 mm और ग्रेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन: to encourage an infant cognitive and psychosocial development, parents and other caregivers should. इन्फेंट्स में कोग्नेटिव और साइकोसोशल डेवलपमेंट करना है तो पेरेंट्स एंड केयर गिवर ने क्या करना है? तो फर्स्ट ऑप्शन अलाउ द बेबी टू प्ले अलोन सेवरल आवर्स ईच अदर. सेकेंड, फर्मली एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर. Third, give loving, consistent care, including playing. Fourth, keep the baby with them at all times so he or she is safe. And correct option is give loving, consistent care, including playing. Next question: health maintenance program for older people in the community are as follows. Accept. इनमें से कौन सी केयर है, कौन सा प्रोग्राम है जो एल्डरली ओल्ड पीपल के लिए कम्युनिटी में नहीं होता? तो फर्स्ट ऑप्शन डाइटरी गाइडेंस एंड फूड सर्विसेज, सेकेंड पैलिएटिव केयर, थर्ड हेल्थ एजुकेशन एंड फोर्थ होम हेल्थ सर्विसेज. एंड करेक्ट ऑप्शन इज पैलिएटिव केयर. पैलिएटिव केयर हम जो पेशेंट नियर टू डेथ है, जिनकी डेथ होने वाली है, उनको देते हैं. तो ओल्डर पीपल में हम ये केयर नहीं देते क्योंकि वो थोड़े हेल्दी होते हैं, वो एकदम डेथ के रिलेटेड नियर नहीं होते. और पैलिएटिव केयर हम स्पेशली कोई अगर सीवियर डिसीज़ रहा, जैसे कैंसर लास्ट स्टेज पे है, उन लोगों को हम पैलिएटिव केयर देते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन: false labor manifestation are as follow. Except. First option contraction laser with activity or rest. Service progressively effaced and dilated. Third, abdominal discomfort. And fourth, contraction irregular. And correct option is service progressively effaced and dilated is not present in false labor. The next question: the key dietary advice given for patient with gastroesophageal reflux disease is. जो पेशेंट में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ है, उनमें हम कौन सी डाइटरी एडवाइस देंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन हाई फाइबर डाइट विथ लॉट ऑफ फ्लूइड्स, सेकेंड टू टेक हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, थर्ड to avoid protein and calcium, and fourth option to avoid caffeine, tobacco, beer, milk and carbonated beverages. And correct option is to avoid caffeine, tobacco, beer, milk and carbonated beverages in the case of gastroesophageal reflux disease.
The next question, compression of facial nerve in the temporal bone will lead to. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फेशियल नर्व जो होती है उसको अगर कंप्रेस किया, जो टेम्पोरल बोन पे होती है उसको अगर कंप्रेस किया तो क्या कौन सा डिसीज़ हो सकता है पेशेंट में. तो फर्स्ट ऑप्शन गुलियन बैरे सिंड्रोम, सेकेंड मेनिंगोसेल, एंड फोर्थ बेल्स पाल्सी, एंड थर्ड बेल्स पाल्सी, एंड फोर्थ मल्टीपल स्क्लेरोसिस. एंड करेक्ट ऑप्शन इज़ बेल्स पाल्सी. अगर फेशियल नर्व जो है टेम्पोरल बोन में वो कंप्रेस हो गई तो पेशेंट में बेल्स पाल्सी दिख सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडरिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन अ रिजर्वायर माइट बी. फर्स्ट ऑप्शन a tick carrying Lyme disease, second staphylococcus bacteria, third a contaminated water supply, and fourth an infected patient. And correct option is a contaminated water supply is considered as a chain of infection. Next question, the level of care which is oriented toward the promotion and maintenance of health, the prevention of community disease, the management of common episodic diseases, and the monitoring of stable and chronic diseases. तो ये सब चीज़ें किस लेवल पे होगी ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन में. तो फर्स्ट ऑप्शन टर्शरी केयर लेवल, सेकेंड सेकेंडरी केयर लेवल, थर्ड एडवांस केयर लेवल, एंड फोर्थ प्राइमरी केयर लेवल. एंड करेक्ट ऑप्शन इज प्राइमरी केयर लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन रिक्वायर्ड द यूज ऑफ प्रोटेक्टिव आई वियर वेन. फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें आई के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लेना है, तो वो कब लेना है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन. तो फर्स्ट ऑप्शन केयरिंग फॉर द पेशेंट विथ कफ, सेकेंड व्हेन अ वुंड इज ओजिंग ब्लड, थर्ड देयर इज अ डेंजर ऑफ बॉडी फ्लूइड स्प्लैशिंग, एंड फोर्थ इन्वेशन प्रोसीजर एंड आर परफॉर्म. एंड करेक्ट ऑप्शन इज अगर डेंजर रहा बॉडी फ्लूइड स्प्लैशिंग का तो हमें प्रोटेक्टिव आई वियर यूज़ करना है एज अ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी प्रिवेंशन इज. सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होगा. फर्स्ट ऑप्शन गुड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, सेकेंड अर्ली डिटेक्शन एंड ऑफ डायग्नोसिस डिसीज एंड द प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, थर्ड safe water supply, vector and animal reservoir control, and fourth nutritional counseling. Next question, secondary prevention is. secondary prevention क्या होगा. फर्स्ट ऑप्शन गुड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, सेकेंड अर्ली डिटेक्शन एंड ऑफ डायग्नोसिस डिसीज एंड द प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, थर्ड safe water supply, vector and animal reservoir control, and fourth nutritional counseling. And correct option is early detection of disease and prompt treatment is the secondary prevention. Next question, in Erickson's theory adolescent develop a sense of. Erikson theory के अनुसार adolescent में कौन सा सेंस डेवलप होता है. फर्स्ट ऑप्शन इंटेलेक्ट, सेकेंड इनिशिएटिव, थर्ड इंडस्ट्री, एंड फोर्थ आइडेंटिटी. एंड करेक्ट ऑप्शन इज आइडेंटिटी. इरिक्सन थ्योरी के हिसाब से एडोलेसेंट में आइडेंटिटी सेंस डेवलप होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटेटिव एंड अनकंट्रोलेबल थॉट्स एंड एक्ट इज टर्म्ड एज. जो रिपीटेटिव एंड अनकंट्रोल थॉट्स होते हैं तो एंड एक्ट्स होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे. तो फर्स्ट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सेकेंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, थर्ड फोबियाज, एंड फोर्थ अप्रहेंशन. एंड करेक्ट ऑप्शन इज OCD मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. जब कोई पर्सन कंटिन्यू रिपीटेटिव अनकंट्रोल थॉट्स या फिर एक्ट्स परफॉर्म कर रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे,
obsessive compulsive disorder. Next question, the bacteria that retain the stain in a Gram's method of staining is, कौन सा बैक्टीरिया है जो रिटेन होता है ग्राम स्टेनिंग मेथड में? तो फर्स्ट स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया, सेकेंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, थर्ड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया एंड फोर्थ ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो रिटेन होता है ग्राम्स मेथड ऑफ स्टेनिंग में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द टोज are indicative of abnormalities in the motor control pathways leading from cerebral cortex is, first option Babinski reflex, second patellar reflex, third Achilles reflex and fourth Robert test. And correct option is Babinski reflex. जब टोज जो है वो इंडिकेटिवली और एबनॉर्मलिटीज़ होती है और मोटर कंट्रोल पाथवे जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो आती है, तो वो कौन सा रिफ्लेक्स है? तो वो है बार्बिन्स्की रिफ्लेक्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रेज सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ बाइलेरल, फर्स्ट ऑप्शन बाइलरी कोलिक, सेकेंड यूज ऑफ एस्पिरिन विथ वायरल इलनेस, थर्ड सिकल सेल क्राइसिस एंड फोर्थ hemolytic transfusion reaction. And correct option is use of aspirin with viral illness. तो रेज सिंड्रोम किसके रिलेटेड है? यूज ऑफ एस्पिरिन विथ वायरल इलनेस. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिकल सब्सटेंसेस that increase the sensitivity of pain receptor by enhancing the pain provoking effect of the bradykinin is, वो कौन सी क्लासिकल सब्सटेंस है जो पेन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करते हैं और पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट को एनहांस करते हैं इन द केस ऑफ ब्रैडिकाइनिन? तो फर्स्ट ऑप्शन है नोसिसेप्टर, सेकेंड endorphins, third encephalin and correct option is prostaglandins. Then next question, when a pulse rate is irregular it is best to count the, अगर पल्स रेट इरेगुलर है तो हमें कहाँ से काउंट करना है? तो करेक्ट रीडिंग आएगी. तो फर्स्ट ऑप्शन रेडियल पल्स फॉर 30 सेकेंड, सेकेंड रेडियल पल्स फॉर अ फुल मिनट, apical pulse for a full minute and fourth apical pulse for 30 seconds. And correct option is apical pulse for full minute. अगर पल्स इरेगुलर है पल्स रेट तो हमें अपाइकल साइड पे काउंट करने हैं, तो हमें बेस्ट काउंट मिलेगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन असेसिंग फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ 5-year-old you would find it abnormal if he, अगर हम 5 ईयर के बच्चे में फ़िज़िकल डेवलपमेंट असेस कर रहे हैं तो अगर कौन सी बात रहेगी जो बताती है कि इस बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन कुड स्टैक अप पाइल ऑफ 6 blocks, सेकेंड नीडेड टू गो अप अ स्टेयरवे 1 step at a time, third cold jump on 1 foot a few times, fourth could catch a larger rubber ball. And correct option is needed to go up a stairway 1 step at a time.